Bismillahirrahmanirrahim. In our previous lecture, we discussed about the different type of dysarrhythmias and its management. Now we start our topic with coronary artery disease. You know the coronary arteries are the important arteries that supply the blood to the heart. If they are narrow and the something or the plaque are present in the arteries, their blood supply will be decreased. When the blood supply in the arteries decrease, then the muscle of the heart become infarcted and ischemia is occur. So the coronary artery disease is the narrowing of the coronary artery disease that prevent the adequate blood supply to the heart muscle is called the coronary artery disease. It is caused by the atherosclerosis. Atherosclerosis is the progressive to the point where the heart muscle is damaged to the lack of the blood supply. Rather, it's cause the infarction, arrhythmias, and heart failure. The coronary artery disease is also known as the atherosclerotic heart disease, coronary atherosclerosis, coronary arteriosclerosis, and the coronary artery heart disease. The coronary artery disease is result from the buildup of the fat and cholesterol deposit is called the plaque in the coronary arteries, and this process is also known as atherosclerosis and potentially completely block the flow of the blood to the heart. In this diagram, you can see the normal lumen of the coronary arteries. When this lumen is occupied with the cholesterol and the other fat, the lumen of artery will become narrow and the blood supply towards the heart is low from the normal. The coronary atherosclerosis is the process by which the arteries become narrow and harder is known as atherosclerosis. Atherosclerosis is the abnormal accumulation of the lipid and fatty substance or fatty atheroma plaque in the lumen of the coronary artery. डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास किस तरह हमारे पास नॉर्मल ब्लड फ्लो कर रहा है हमारे पास, ठीक है, और कैसे कैसे इसमें फैट और कोलेस्ट्रॉल आके एक्यूमुलेट होती जा रही है हमारे पास ब्लड को जो हार्ट सप्लाई करते हैं कॉर्नरी आर्टरीज में. तो फिर जैसे प्लैग और कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो हमारे पास आर्टरीज में ज़्यादा होगा तो वो ल्यूमन तो हमारा तंग हो जाएगा और साथ साथ हार्डनिंग हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो होती है वो कम हो जाएगी. Acute coronary artery syndrome is defined as a potential complication of the coronary artery disease, and it includes the three unstable angina, myocardial infarction with ST segment elevation, myocardial infarction with non-ST segment elevation. नॉर्मल आर्टरीज है डायग्राम में आपको नजर है अनकॉम्प्लिकेटेड एथेरोमा, ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास अनस्टेबल एंड स्टेबल एंजाइना में, और फर्दर जो अनस्टेबल एंजाइना इसकी वजह से एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन और इसकी वजह से हम क्या कहते हैं एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम्स. The risk for the coronary artery syndrome is increased if the patient has the diabetes mellitus, peripheral artery disease, abdominal aortic aneurysm and the carotid artery disease. यानी ऐसे पेशेंट जिनमें ये डिजीज़ होगी उनमें coronary artery syndrome के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होंगे हमारे पास, ठीक है. coronary artery syndrome अभी बताया कि हमारे पास ST segmentation एलिवेशन भी हो सकती है, नॉन भी एलिवेशन होती है. जब हम ट्यूमर मार्कर इसके करवाएंगे, जब इनके कार्डिक मार्कर करवाएंगे अगर पॉजिटिव, तो ये हमारे पास जो coronary artery syndrome है वो हमारे पास मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से होगा, और अगर ये मार्कर नेगेटिव है तो मतलब पेशेंट को अनस्टेबल एंजाइना हमारे पास, ठीक है. इसी तरह क्यूवे मायोकार्डियल इन्फेक्शन विद ST सेगमेंट एलिवेशन और विद नो क्यूवे मतलब नॉन ST सेगमेंट एलिवेशन के साथ आइए. अब रिस्क फैक्टर हमारे पास कोरोनरी आर्टरी सिंड्रोम के कौन कौन से होते हैं, एक तो मॉडिफाइबल, दूसरे जो होते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं. मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर वो होते हैं जिनके ओवर द पैसेज जब हम चेंज करें तो इनके रिस्क को हम कम कर सकते हैं, लेकिन नॉन मॉडिफाइबल होते हैं जिनको ओवर द पैसेज जो टाइम जो चलते रहते हैं. मॉडिफाइबल में हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है, यानी अगर हम अपने डाइट प्लान अच्छी करें, एक्सरसाइज करें तो ये हमारे पास इन लेवल को हम कम कर सकते हैं. फिर सिगरेट स्मोकिंग है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, लॉक ऑफ द लिस्ट्रोजन है, और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में हमारी फैमिली हिस्ट्री ऑफ द कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, इंक्रीजिंग एज है, जेंडर और सेक्टर है. कोरोनरी आर्टरी रिस्क फैक्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो हाई ब्लड प्रेशर है, हाई लेवल ऑफ LDL आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है, और स्मोकिंग जो होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के. जो लिपिड्स जो होते हैं इनमें डिवाइड कर देते हैं इनटू कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड में, इनमें मोस्ट जो हमारे पास बैड फॉर द हार्ट है वो हमारे पास LDL एंड गुड फॉर द हार्ट जो होती है वो HDL है हमारे पास, ठीक है. ये हमारे पास डिफरेंट तरह के लेवल्स बताए हुए हैं कि LDL का लेवल कितना होगा और HDL का लेवल हमारे पास कितना होगा. अगर हमारे पास LDL का लेवल 160 mg पर DL फॉर द पेशेंट विद 1 और द नो रिस्क फैक्टर है हमारे पास, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है. इसी तरह जो हमारे पास LDL लेवल है और डिपेंडिंग LDL लेवल एंड द रिस्क ऑफ द कोरोनरी आर्टरी डिपेंड अपॉन द पेशेंट की डाइट और फिजिकल एक्टिविटी के जरिए से हम कंट्रोल कर सकते हैं. जबकि जो HDL लेवल है शुड एक्सीड 40 mg पर DL एंड आइडली मोर देन 60 mg एंड हाई HDL इज द स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फैक्टर फॉर द हार्ट डिजीज़ आ जाता है. ये वही फिर रिस्क फैक्टर बताया हुआ है कि मॉडिफाइड एंड नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कौन कौन से, डाइट और लाइफस्टाइल बताया हुआ कि कितनी हम कैलोरीज
इनटेक करेंगे तो हमारे पास रिस्क जो है वो नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। व्हाट इज़ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द कॉर्निया आर्टरी सिंड्रोम, या फिर हमारे पास कॉर्निया थीरोस्क्लेरोसिस किसी भी वजह से जो हमारे पास प्लैग है वो आर्टरीज में आ गया, वहाँ पे एंडोथेलियल लाइनिंग इंजरी हो जाएगी, वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, हमारे पास एक्यूमुलेशन ऑफ फैट हो जाएगा, वहाँ पे WBCs एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्रोलिफरेशन फॉर्मेशन ऑफ द कैप ओवर द हेड फैटी कॉर्न आ जाए, एथ्रोमा बन जाएगा, नैरिंग हो जाएगी, ब्लड वेसल जो होती है हमारे पास, ठीक है। नैरो का वेसल होने की वजह वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, हेमरेज जो हो जाएगा और साथ में प्लैग बन जाएगा, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगी और इसकी वजह से सडन कार्डिक डेथ और एंजाइना इस तरह के सिम्टम्स आ जाएंगे। साइन एंड सिम्टम्स के आएंगे पेशेंट विद थीरोस्क्लेरोसिस, पेशेंट चेस्ट पेन, एंजाइना पेक्टोरस, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, डायफ्रोसिस के साथ डिस्निया, चेस्ट हैवीनेस, डिसरिथमिया और फटीग के साथ आएगा। टेस्ट हम कौन कौन से कराएंगे? फिजिकल सबसे पहले पेशेंट से आप हिस्ट्री लेंगे कि आपको ये प्रॉब्लम है, कब से हो रहा है, फैमिली में तो किसी को रन नहीं कर रहा। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पेशेंट की एबनॉर्मेलिटी को चेक करेंगे, कार्डिक एंड ड्राइविंग ECG करवाएंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करवाएंगे, स्ट्रेस टेस्ट करवाएंगे, ECG चेक करेंगे 12 लीड ECG। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि किस तरह पेशेंट की ECG आप चेक करोगे हमारे पास, ठीक है। जब ECG करवाएंगे तो इसमें जो ST सेगमेंट है वो इसकी वेरिएशन नज़र आएगी आपको हमारे पास, ठीक है। और इकोकार्डियोग्राम करवाएंगे जिसमें आपने जो हार्ट के मसल्स हैं इनकी एक्टिविटी को आप चेक करोगे हमारे पास नॉर्मल है कि नहीं है। फिर पेशेंट को कितनी एक्टिविटी को बियर कर सकते हैं, तो इसके लिए हम एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट करवाएंगे, जिसको हम ट्रेड मील्स के ज़रिए से या फिर बाईसाइकिल्स के ज़रिए से पेशेंट को कुछ ड्यूरेशन के लिए एक्सरसाइज करने के लिए देंगे, और फिर पेशेंट की हार्ट रेट और मसल्स की एक्टिविटी को चेक करेंगे हमारे पास, ठीक है। फिर डिफरेंट तरह की न्यूक्लियर कार्डिक इमेजिंग एक्सरेज हार्ट के करवाएंगे हमारे पास, ठीक है। और फिर एंजियोग्राफी करवाएंगे हमारे पास, ठीक है, जिसमें हमारे पास हार्ट की एक्टिविटीज़ होती है हमें पता चल जाएगी। और अगर हमारे पास थीरोस्क्लेरोसिस को अगर हम ओवरकम नहीं करेंगे तो इसकी वजह से प्रॉब्लम पेशेंट का चेस्ट पेन कंटिन्यू हो जाएगी, हार्ट अटैक में और हार्ट फेलियर में पेशेंट चला जाएगा। मैनेजमेंट करने के लिए पेशेंट को नाइट्राइड देंगे हमारे पास, बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे, स्टीम देंगे हमारे पास पेशेंट को एनाल्जेसिया पेन को मेडिकेशन करने के लिए, वो मेडिसिन जो कि हम पेशेंट के लिए थीरोस्क्लेरोसिस के पेशेंट को हम देंगे हमारे पास। सर्जिकल इंटरवेंशन के पेशेंट को एंजियोप्लास्टी स्टंट या फिर पेशेंट को कैब्रिज और पीडे परक्यूटेनियस ट्रांस इल्यूमिनेशन देंगे, प्रोसीजर जो है वो हमारे पास करेंगे। इनकी डिटेल आगे पढ़ोगे। PCI प्रोसीजर क्या हमारे पास, इसमें पेशेंट का ल्यूमन देखते हैं कि कौन सा ब्लड वेसल जहाँ के हमारे पास नहर है वहाँ पे एक बलून कैथेटर के जरिए से इंसर्ट करते हैं हमारे पास, ठीक है। और वहाँ से जो प्लैग है उसको रिमूव कर देते हैं और आर्टरी को वहाँ से ओपन हो जाती है हमारे पास, ठीक है। फिर कॉर्निया आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग है हमारे पास, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि आर्टरी का कौन सा पार्ट ब्लॉकेज हुआ है उसका वहाँ से रिमूव करते हैं, दोबारा फिर इनको वहाँ से ग्राफ्ट कर देते हैं हमारे पास, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास PTCA, ये थिनी एक्सपेंडेबल मेटल कॉइल जो होती है वो इसमें हमारे पास इंसर्ट कर देते हैं हमारे पास, ठीक है, जिसके ज़रिए से न्यूली पाथवे बन जाता है ब्लड को सप्लाई करने के लिए। किस तरह हम कॉर्निया आर्टरी के डिजीज़ के रिस्क को हम कर सकते हैं? नंबर 1, अपने वेट को कंट्रोल करें, स्मोकिंग को अगर हम प्रिवेंट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, हेल्थी डाइट लेंगे, जंक फूड्स का कम करेंगे, स्टेडी लाइफस्टाइल को अगर हम ख़त्म करेंगे तो कॉर्निया आर्टरी के डिजीज़ के रिस्क जो होते हैं वो हमें कम हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट आपने पेशेंट को क्या बतानी है, पेशेंट को हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आपने पेशेंट से ले लेनी है हमारे पास, ठीक है। जो रिस्क जो हमारे पास मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है हमारे पास, ठीक है, उनको पेशेंट को बताना है कि किस तरह उनको ओवरकम कर लेना, ठीक है। और अगर पेशेंट को वो डिजीज़ हो गया तो पेशेंट को डिस्चार्ज प्लान बताना है कि किस तरह आप फर्दर इन बीमारी से बच सकते हैं हमारे पास, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास अंजाइना है। अंजाइना क्या हमारे पास क्लिनिकल सिंड्रोम यूजुअली कैरेक्टराइज बाय द प्रोक्सिमल ऑफ द पेन एंड प्रेशर ऑफ द इंटीरियर लूप, दे कॉज यूजुअली इनसफिशिएंट ऑफ द ब्लड सप्लाई जाते हैं। एंजाइना की डिफरेंट टाइप है जिसमें स्टेबल और अनस्टेबल एंजाइना है। स्टेबल इज प्रिडिक्टेबल कंसिस्टेंट पेन दैट इज अकर इन एंड रिलीव बाय द रेस्ट, जिसे स्टेबल एंजाइना कहते हैं। जबकि अनस्टेबल एंजाइना इसे हमारे पास प्री इन्फेक्शन एंजाइना भी कहते हैं। द सिम्टम में भी अकर फ्रिक्वेंटली एंड लास्ट लॉन्गर देन स्टेबल एंजाइना एंड द पेन में भी अकर एट अ रेस्ट आ जाती है। ये डिफरेंस बताया हुआ कि क्या डिफरेंस है हमारे पास स्टेबल और अनस्टेबल एंजाइना में। जो स्टेबल है इसमें हार्ड वर्क ड्यूरिंग द फिजिकल एक्सरसाइज आती है, इसमें अगर नेदर एट अ रेस्ट आ जाते हैं बट द स्लीपिंग नॉट विद द लिटिल फिजिकल एक्सर्शन आ जाती है हमारे पास, ठीक है। फिर आता है वेरिएंट एंजाइना आल्सो कार्ड द प्री मेटलाइजेशन एंजाइना आ जाते हैं। प्री मेंटल पेरीमेंटल एंजाइना पेन एट अ रेस्ट विद द रिवर्सिबल ST सेगमेंट एलिवेशन होगी हमारे पास। माइक्रोवास्कुलर एंजाइना जिसे हम एंजाइना एक्स सिंड्रोम भी कहते हैं, पेशेंट हैव द चेस्ट पेन बट दे डू नॉट सीम टू हैव एनी ब्लॉकेज इन द कॉर्निया आर्टरीज आ जाती है। फिर साइलेंट स्कीमिया ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ द स्कीमिया आ जाते हैं बट द पेशेंट में रिपोर्ट नो सिम्टम आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। एंजाइना स्टेबल है, अनस्टेबल है और वेरिएंट एंजाइना है हमारे पास, ठीक है। और एंजाइना की टाइप्स है
इसी तरह डिफरेंट तरह की हमारे पास एंजाइना की टाइप है। टाइप 1 है इन द एब्सेंस ऑफ द माइकार्डियल डिजीज़ है। टाइप 2 है जिसमें माइकार्डियल डिजीज़ के साथ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताई हुई है। साथ टाइप 3 है जिसमें ऑब्स्ट्रक्टिव कॉर्निया आर्टरी डिजीज़ और टाइप 4 है जिसमें आइडियोजेनिक है। फीचर क्या होंगे पेशेंट को एंजाइना पेक्टोरस में पेशेंट को क्या होगी पेन है जो कि स्प्रेड करेगी नेक में, जॉस में, आर्म्स में, शोल्डर में, थ्रोट में, बैक में और इवन टीथ में। जो लेफ्ट साइड पे ये पेन रेडिएट करेगी और स्टेबल एंजाइना में लास्ट 1 to 5 मिनट्स रह जाएगी। जब आपने पेशेंट को एंजाइना के साथ आएगा तो पेशेंट के आपने पेन की लोकेशन को देखनी है, रेडिएशन को देखनी है, ड्यूरेशन कितना है, उसका डिस्क्रिप्शन, पेन कैसी है आपने पूछना पेशेंट के, शार्प है, स्टिकिंग है, फिर पेशेंट को ट्रिगरिंग कैसी यानी पेन कैसे जो होती है वो ज़्यादा हो रही है, एक्सरसाइज करते हो तो ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, खाते हो ज़्यादा हो रही है। और पेशेंट को देने मेडिसिन नाइट्रोग्लिसरीन देना है कि इसके कितने मिनट बाद पेशेंट की पेन रिलीव होती है हमारे पास, ठीक है। और फिर पेशेंट की आपने ईसीजी करवा देनी जिसमें एसटी सेगमेंट की डिप्रेशन होगा, टी वेव की इन्वर्जन होगी हमारे पास, ठीक है। मेडिकल में पेशेंट को जो है ना वो ऑक्सीजन थेरेपी दें, बेड रेस्ट करने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर देंगे और साइकोलॉजिकली पेशेंट को आपने सपोर्ट देनी है हमारे पास, ठीक है। एंटी ऑक्सीजन है, नाइट्रोग्लिसराइड है, एस्पिरिन है और मॉर्फिन पेन किलर के तौर पे पेशेंट को देनी है। और जब पेशेंट को असेसमेंट आपने PQRST सेगमेंट को पेशेंट को आपने असेस करना है यानी पी से पोजीशन को, क्वालिटी को, जैसे पीछे बताया रेडिएशन को, सिवेरिटी को और फिर सिम्टम टाइमिंग की। एंजाइना पेक्टोरस में ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट टेबल है जिसमें आपने चेक करना है कि एंजाइना के पेशेंट को आप किस तरह असेसमेंट कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करनी है, पेशेंट को आपने कंफर्ट देना है, हमारे पास एक्सरसाइज करने के लिए कहना है हमारे पास, ठीक है। एंजाइटी को रिलीव करना है और पेशेंट फैमिली को आपने एजुकेशन जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन की मेडिसिन इसको रिलीव करना है हमारे पास, ठीक है। ये तो था हमारे पास एंजाइना पेक्टोरस, इसकी टाइप्स क्या है हमारे पास, ठीक है, और इसकी मैनेजमेंट। नेक्स्ट है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अगर एंजाइना पेक्टोरस अगर ठीक नहीं होगा तो यानी एंजाइना में क्या ब्लड सप्लाई कम हो जाता है हमारे पास, ठीक है। और जब ब्लड सप्लाई कम होगा तो जो हार्ट के मसल्स हैं उनमें ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी और वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगी, स्कीमिया हो जाएगा हमारे पास, तो इसे हम क्या कहते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। सब्सिक्वेंट नेक्रोसिस और डेथ ऑफ द मायोकार्डियल। इसकी डिफरेंट तरह की टाइप्स है, टाइप 1 है, 2 है, 3 एंड 4 है हमारे पास, ठीक है। इनकी क्लासिफिकेशन की है बेस्ड ऑन द पैथोलॉजी। इसमें ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फेक्शन है विद द एथेरोस्क्लेरोसिस इन्वॉल्व अ मेजर कॉर्नियल आर्टरी डिजीज में भी सब क्लासिफाइड इनटू द इंटीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर एंड लेटरल आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। सब है हमारे पास सब एंडोकार्डियल मायोकार्डियल इन्फेक्शन है स्मॉल एरिया इन द सब एंडोकार्डियल वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकुलर सेप्टम एंड द पेपिलरी मसल आ जाते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू द एनाटॉमिकल रीजन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इन्वॉल्व द मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज डिवाइडेड इनटू द इंटीरियर मायोकार्डियल इन्फेक्शन, पोस्टीरियर, लेटरल, सेप्टल आ जाते हैं। फिर इसकी हमारे पास क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द थिकनेस ऑफ द वेंट्रिकुलर वाल्व है जिसमें ट्रांसम्यूरल है, लैमिनर है हमारे पास, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द इन्फेक्शन न्यूली फॉर्म्ड है जिसमें एक्यूट है, रिसेंट है, फ्रेश और फिर एडवांस कॉन्ट्रोफर्शियल, ये सब मायोकार्डियल इन्फेक्शन के टाइप्स हैं। टाइप 1 में जैसे स्पॉन्टेनियस मायोकार्डियल इन्फेक्शन रिलेटेड टू द एक्सीमिया। टाइप 2 है मायोकार्डियल इन्फेक्शन सेकेंडरी टू द इस्कीमिया। टाइप 3 में सडन अनएक्सपेक्टेड कार्डियक डेथ हो जाएगी हमारे पे। टाइप 4 है जिसमें कॉर्नियल आर्टरी एंजियोप्लास्टी और स्टंट के साथ मायोकार्डियल इन्फेक्शन एसोसिएटेड विद द कैबेज है। ये हमारे पास मायोकार्डियल इन्फेक्शन की टाइप्स हैं और साथ में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन किस तरह इसको डिवाइड किया गया है। ईटियोलॉजी यही पीछे के पेशेंट का एथेरोस्क्लेरोसिस है वो ट्रीट नहीं हुआ तो पेशेंट को एंजाइना ट्रीट नहीं हुआ तो पेशेंट को आगे पेशेंट के मसल्स को, हार्ट के मसल को ब्लड सप्लाई कम है जो वहाँ पे इस्कीमिया और फिर वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाएगा। रिस्क फैक्टर मोस्टली वही है कि जो आपने एंजाइना पेक्टोरस में पढ़े हैं हमारे पास, ठीक है। डिग्री ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन डिपेंड करती है कि हमारे पास किस डिग्री तक जो होते हैं वो हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचा हमारे पास, ठीक है। पहुँचा। पैथोफिजियोलॉजी क्या है हमारे पास, कॉन्ट्री आर्टरी पैकअप है, कोई भी है पेशेंट को कॉन्ट्री एथेरोस्क्लेरोटिक है, थ्रोम्बोसिस वगैरह बन गया, इसकी वजह से मायोकार्डियल इस्कीमिया हो गया, मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई जो होती है वो कम हो गई है हमारे पास, ठीक है। तो इन सब की वजह से जो होते हैं वो हमारे पास सिंपैथेटिक रिसेप्शन जो होती है इसकी स्टिमुलेशन और जब वेरिफाइड कंस्ट्रक्शन इंक्रीज मायोकार्डियल कॉन्टैक्टिबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। आफ्टर लोड इंक्रीज हार्ट इंक्रीज, ये इसकी कंपनसेशन बताई हुई किस तरह टिश्यू कम हो जाएगी तो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा हमारे पास, हार्ट के मसल को सप्लाई करेगी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पेशेंट विद मायोकार्डियल इन्फेक्शन, पेशेंट को चेस्ट पेन होगी हमारे पास, ठीक है, जो कि हमारे पास अगर रिलीव नहीं होगी तो पेशेंट को अगर नाइट्रोग्लिसरीन भी देंगे हमारे पास, ठीक है। बेड इंडाइजेशन होगी, हैवी सिटिंग ऑन द चेस्ट होगी, स्क्वीजिंग इन प्रेशर जो होती है वो हमारे पास होगा। यूजुअली पेन लास्ट लॉन्गर देन 20 मिनट, रेस्ट एंड द मेडिसिन इज कॉल्ड नाइट्रोग्लिसरीन मे नॉट बी कम्प्लीटली रिलीव द पेन ऑफ द हार्ट अटैक आ जाती है, ठीक है। जो एंजाइना पे इसमें पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन देंगे तो पेन रिलीव हो जाएगी, लेकिन अगर इसमें जो होता है वो पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन देने से भी पेन रिलीव ज़्यादा नहीं होती।
साइन एंड सिम्टम में पेन, पेशेंट को सडन ऑनसेट होगी, सबस्टर्नल होगी, क्रशिंग पेन होगी, टाइटनेस है, स्वेट, ऐसे जैसे चेस्ट आपकी जगड़ नहीं जाती किसी के साथ वैसी पेन होगी, डिज्निया होगा, सिंकपी होगी, नोजिया, वॉमिटिंग, डायफ्रोसिस आ जाएगा, कॉमल HR जो पेशेंट की सारी डाइटरी रिस्ट्रिक्शन है, कोलेस्ट्रॉल लेवल। ये ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास, पेशेंट को ऑक्सीजन देना है, IV मेडिकेशन मॉनिटर करनी है, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन देनी है हमारे पास, ठीक है, और सर्जिकल मैनेजमेंट पेशेंट की अगर करनी है तो कंप्लीट। ये सारी साइन सिम्टम्स आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी है। अदर सिम्टम पेशेंट एंजाइटी है, कफ है, फेंटिंग आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, पेशेंट की हो जाएगी। टेस्ट आप वही करवाओगे जो आपने एंजाइना पेक्टोरस में करवाए हैं, हमारे पास टेस्ट आ जाते हैं, हमारे पास ECG करवाओगे, टोपाई टेस्ट करवाओगे, कार्डियो एंजियोग्राफी करवाओगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, एक्सरसाइज स्ट्रेस और न्यूक्लियर टेस्ट करवाओगे हमारे पास, ठीक है। ECG करवाओगे तो तब आपको पेशेंट को इसीमिया कन्वर्जन ऑफ द टीवे बिकॉज ऑफ द अल्टर रिपोलराइजेशन कार्डिक मसल इंजरी की वजह से एलिवेशन ऑफ द ST सेगमेंट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और पेशेंट के ब्लड टेस्ट करवाओगे जिसमें पेशेंट को ब्लड मार्कर करवाओगे जिसमें पेशेंट के डिफरेंट ट्रोपाई का लेवल और मायोग्लोबिन का लेवल को आप चेक करोगे हमारे पास, ठीक है। फिर आप फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आता है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पेशेंट को क्या बना हुआ है, थ्रोम्बस बना हुआ है तो उसका रिलीव करने के लिए पेशेंट को एस्प्रिन देंगे हमारे पास, ठीक है, पेन रिलीवर देंगे, नाइट्रोग्लिसरीन देंगे हमारे पास पेशेंट को। और जब पेशेंट को थ्रोम्बोलिटिक मेडिसिन देनी है तो डिफरेंट इसका देखना है कि हमारे पास इंडिकेशन क्या क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या पता होनी चाहिए, फिर नर्सिंग इंटरवेंशन आपने क्या क्या करनी है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास अगर फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट से ट्रीट नहीं हो रहा तो पेशेंट की हम क्या करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट जिसमें कॉन्ट्री एंजियोप्लास्टी एंड स्टंटिंग आ जाती है हमारे पास, ठीक है, यानी जो आर्टरी वहाँ से ब्लॉकेज होगी उसको वहाँ से रिमूव करके हमारे पास वहाँ पर स्टंट डाल के दोबारा जो होती है वहाँ पर ब्लड सप्लाई को कर दिया जाता है, इसे हमारे पास कॉन्ट्री एंजियोप्लास्टी एंड स्टंटिंग कहते हैं। फिर बाईपास सर्जरी कर देते हैं, यानी इसमें क्या कहते हैं, जो एक आर्टरी ब्लॉक है इसको हमारे पास बाईपास करके किसी साथ वाली आर्टरी जो कि हार्ट को सप्लाई करती है उसके साथ इसके साथ एनेटमोसिस कर देते हैं, जिसे कॉन्ट्री आर्टरी बाईपास सर्जरी कहते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करना है, सारा कुछ जो एंजाइना पेक्टोरस पेशेंट को अच्छी तरह PQRST असेस करना है हमारे पास, ठीक है, और पेशेंट के सारे जो होते हैं हमारे पास सिस्टम को हमारे पास असेस करना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, फिर पेशेंट का ब्लड टेस्ट आपने भेजे हैं, हिस्ट्री आपने ले लेनी है, पास मेडिकेशन हिस्ट्री बननी है, फैमिली हिस्ट्री लेनी है, हेड टू टू सर्वे पेशेंट का अच्छी तरह करना है हमारे पास, ठीक है। ये सारी असेसमेंट मेथड आपने करनी है। कॉन्डी आर्टरी डिजीज़ में पेशेंट के स्टॉप ऑल द एक्टिविटीज़ है, वाइटल्स मॉनिटर करने हैं, नाइट्रोग्लिसरीन देना है, ऑक्सीजन थेरेपी जो होती है वो पेशेंट को आपने देनी है, रेस्पिरेटरी फंक्शन को आपने पेशेंट के इम्प्रूव करना है, एंजाइटी को रिड्यूस करना है। तो ये थी हमारे पास मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इसकी डिफरेंट तरह की टाइप्स और नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंट तरह के सर्जिकल प्रोसीजर, मेडिकल सर्जिकल प्रोसीजर जो हम यूज़ करते हैं हमारे पेशेंट के। इसमें हमारे पास PTCA परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमर कॉर्नियल आर्टरी एंजियोप्लास्टी ट्रीट द पेशेंट हु डू नॉट एक्सपीरियंस द एंजाइना बट दे आर एट हाई रिस्क फॉर द कार्डिक इवेंट एट आइडेंटिफाइड बाय द नॉन इन्वेसिव स्टंटिंग, ठीक है। तो इसके लिए हम PTCA प्रोसीजर का यूज़ करते हैं हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लिकेशन बताई हुई है कि जो प्रोसीजर PTCA करते हैं इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है। इन प्रोसीजर की डिटेल आपकी बुक में दी हुई है, या आपने डिटेल प्रोसीजर पढ़ने हैं कि इनकी क्या क्या इंडिकेशन और कब कब ये प्रोसीजर्स करते हैं, उनकी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या। फिर आता है कॉर्नरी आर्टरी स्टंट आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है, यानी आर्टरीज में क्या करते हैं, आर्टिफिशियल स्टंट डाल देते हैं हमारे पास, ठीक है, जो आर्टरी ब्लॉकेज को रिमूव करके आर्टिफिशियली वहाँ पे स्टंट डाल देते हैं हमारे पास, तो इसे कॉर्नरी आर्टरी स्टंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एथोरेक्टमी इज द इन्वेसिव इंटरवेंशन प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ द एथेरोमा एंड प्लाग फॉर द कॉर्नरी आर्टरी। फिर आता है ब्रेकीथेरेपी, PTCA एंड द स्टंट इम्प्लीमेंटेशन फॉर द सेलुलर रिएक्शन इन द कॉर्नरी आर्टरी दैट प्रमोट द प्रोलिफरेशन ऑफ द एडेमा ऑफ द आर्टरी व्हिच इज आल्सो इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ द आर्टरियल ऑब्स्ट्रक्शन। ब्रेकीथेरेपी रिड्यूस द रीअकरेंस ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन। जो PTCA और स्टंट इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर है इसकी वजह से जो रीअकरेंस ऑफ चांस ऑफ थ्रोमा वो ज़्यादा हो जाते हैं, जबकि ब्रेकीथेरेपी हम करते हैं इसकी वजह से जो रीअकरेंस ऑब्स्ट्रक्शन है वो नहीं होती है हमारे पास, ठीक है। फिर है ट्रांसमाइकार्डियल रिवास्कुलराइजेशन प्रोसीजर जो है वो हमारे पास यूज़ करते हैं ऐसे पेशेंट जो कि कार्डिक के सिग्नल बट देर नॉट कार्डिक फॉर कैबेज में बेनिफिट आ जाता है, तो इसके लिए हम ट्रांसमाइकार्डियल रिवास्कुलराइजेशन प्रोसीजर का हम यूज़ करते हैं। फिर कुछ सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें ट्रेडिशनल कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग है, कार्डियोपल्मोनरी बाईपास टेस्टिंग है जिसमें प्रोसीजर मैकेनिकली सर्कुलेट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी वाइल बाईपासिंग द हार्ट एंड द लंग्स आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है, यानी डायरेक्ट जो होते हैं हार्ट और लंग्स में से ब्लड पास करते हैं। फिर आता है हमारे मिनिमली इन्वेसिव डायरेक्ट कैब भी जाते हैं जिसे मिड कैब जो होते हैं प्रोसीजर भी कहते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये कुछ सर्जिकल मेडिकल प्रोसीजर हैं जो कि हम हार्ट की अगर प्रॉब्लम है तो इसके लिए हम करते हैं। अब आपकी बुक में एक प्रोसीजर दिया हुआ है जिसमें कार्डिक सर्जरी, इसमें ओवरऑल पूरा लिखा हुआ है कि इसकी असेसमेंट आपने कैसे करनी है, इसकी हमारे पास डायग्नोसिस प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन
क्या क्या करनी है। तो ये पूरा आपने कार्डिक सर्जरी का जो नर्सिंग प्रोसेस आपकी बुक में दिया हुआ है उसको हैंड रिटन लिखना है, और आपने ये वाली असाइनमेंट भी मंडे वाले दिन फिज़िकली कॉलेज में आके सबमिट करवानी है हमारे पास, ठीक है। और साथ में इसकी जो पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ कार्डिक सर्जरी ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट पेपर्स में भी आया हुआ है, इसलिए आपने जो प्रोसीजर्स इसमें नर्सिंग प्रोसीजर लिखा हुआ है ना कार्डिक सर्जरी का, कि कार्डिक सर्जरी के हम क्यों प्लान करते हैं, इसका हमारे पास प्री प्रोसीजर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पेशेंट को प्रेपरेशन आपने कैसे करनी है, इंट्रा ऑपरेटिव कैसे करनी है, पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी अगर हो गया तो पेशेंट को आपने किस तरह केयर प्रोवाइड करनी है, ठीक है। नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में अक्सर क्वेश्चन भी आया हुआ है। शुक्रिया।